So we did Boyle's law, that is pressure is inversely proportional to volume when amount of gas and temperature is kept constant. Amount of gas हम number of moles की terms में देख रहे हैं, temperature usually taken on the Kelvin scale. ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया था PV equals to constant और P1 V1 is equal to P2 V2. We can compare the initial condition, pressure volume or final pressure volume provided amount of gas and temperature is kept constant, right? This is which law? Boyle's law. Then we talked about manometer and barometer. Gases का pressure अगर measure करना है तो we use manometer as an instrument, और अगर atmospheric pressure measure करना है तो हम क्या use करते हैं? barometer. फिर barometer में हमने क्या बात किया? barometer में कौन सा liquid हम use करते हैं? Which liquid is used in barometer? It is mercury. So barometric liquid क्या कौन सा होता है? Mercury. Now if we use water instead of mercury, what will happen? Why do we use mercury? Why can't we use water? See now, इसके reasons क्या है? Why do we use mercury as the barometric liquid? There are few reasons behind this. See, the density of mercury is very high relatively as compared to water. Density of mercury is 13.6 grams per centimeter cube, whereas density of water is only 1 gram per centimeter cube. So there's a lot of difference. ठीक है, अगर हम वाटर यूज करते हैं मरकरी की जगह तो क्या प्रॉब्लम होगा? डेंसिटी वाटर का बहुत लो है, ठीक है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा? उससे जो हाइट ऑफ कॉलम है, सो जो हाइट ऑफ कॉलम होगी दैट विल बी इन केस ऑफ वाटर लार्ज कॉलम लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा कॉलम लेना पड़ेगा. ठीक है, सो हाउ डू वी रिलेट? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड वी कैन रिलेट वॉल्यूम को कैसे हम लिख सकते हैं? वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इंटू हाइट. ठीक है, सी डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम कैन बी टेकन एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू हाइट. So keeping the mass constant, area of cross section of the tube constant, अगर हम density और height को compare करें, so अगर density ज्यादा होगा, so height of the column required will be less. Density is inversely proportional to height. So अगर density of liquid ज्यादा होगा, तो जो height of liquid required है, that will be less. So density of mercury is very high. That means height of mercury column required is less. बट अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर का डेंसिटी बहुत कम है, तो जो हाइट ऑफ कॉलम हमें चाहिए होगा टू सपोर्ट इक्विवेलेंट प्रेशर. देखो हमें ये जो हाइट ऑफ कॉलम हम यहां लेते हैं, दिस इज द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम, राइट? इफ यू रिमेम्बर द बैरोमीटर, सो ये जो सरफेस के ऊपर मर्करी का लेवल है, दिस इज द हाइट ऑफ द मर्करी लेवल. ओके, हाइट ऑफ मर्करी. So this height is supporting like 76 centimeters of mercury. It corresponds to 1 atmospheric pressure. तो 1 atmospheric pressure को सपोर्ट करता है 76 सेंटीमीटर्स ओनली. 76 सेंटीमीटर्स इतना ही हाइट रिक्वायर्ड है 1 atmospheric प्रेशर को बैलेंस करने के लिए. अब अगर वाटर लेंगे तो ये हाइट बहुत लंबा रहेगा. हाइट लंबा रहेगा देन यू हैव टू अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेट द apparatus. सो वो इनकन्वीनियंट हो जाएगा. सो this is one reason density of mercury is very high. So height of the column required is low. It is convenient. It is convenient for practical purposes. ठीक है. Second important reason is mercury is non-volatile. So we are comparing it with water. Mercury non-volatile है, vaporize नहीं करेगा, vapors produce नहीं करेगा. वाटर क्या है? वेपर्स प्रोड्यूस करता है. अगर यहाँ पर ये वेपर्स प्रोड्यूस होंगे तो ये जो वेपर्स है दे विल ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर. ठीक है, सो जो हमारे पास हाइट आएगी सो वो करेक्ट नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेपर्स अगर कलेक्ट होते हैं, जैसा कि वाटर के केस में, इफ द वाटर वेपर्स आर कलेक्टेड ऑन द टॉप, सो दे विल ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कॉलम ऑफ व्हाटएवर. अगर वाटर ले रहे तो वाटर कॉलम पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा. सो तो उससे जो हाइट रिकॉर्डेड होगी दैट विल नॉट बी करेक्ट. सो इन केस ऑफ मर्करी यहाँ पर कोई वेपर्स कलेक्ट नहीं होते, यहाँ पर वैक्यूम है. ठीक है, सो
हाइट जो रिकॉर्ड होती है दैट इज प्रिसाइज. सो रिमेंबर मर्करी इज नॉन वॉलेटाइल, whereas water produces water vapors even at room temperature. Third, mercury does not stick to glass. तो वहां से जो रिकॉर्डिंग जो भी हम वैल्यूज रिकॉर्ड करते हैं वो प्रिसाइज होती है. ठीक है, मर्करी डज नॉट स्टिक टू ग्लास. So these are the reasons why we use mercury as a barometric liquid. Density of mercury is very high, so height of column required is less. So height of column required is less. Okay? It is convenient for practical purposes. Mercury is non-volatile, so no vapors will be produced, and it does not stick to glass. Whereas water sticks to glass. तो उसकी वजह से फिर रीडिंग्स पे क्या हो जाता है, रीडिंग्स जो है वो करेक्ट नहीं आती है. ओके, नाउ दिस वाज बैरोमीटर. देन नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ. So according to Charles' law, volume of a gas is directly proportional to temperature on Kelvin scale if amount of gas and P are kept constant. ठीक है, पहले आप डायरेक्टली याद कर लो. पहले हमने क्या किया, लास्ट उसमें प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन किया बॉयल्स में. अभी क्या है, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन. वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर और टेम्परेचर when the amount of gas and pressure are kept constant. So amount of gas मतलब for a fixed mass of gas, वही definition बन गया. For a fixed mass of gas meaning amount of gas is constant and at constant pressure. Pressure constant है, ठीक है. For a fixed mass of gas, amount of gas constant है, pressure constant है, volume of a gas is directly proportional to its temperature. Volume of gas is directly proportional to temperature. Volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature बोल सकते हैं या simply temperature. ठीक है, fixed mass of gas means the volume, the number of moles are kept constant. Absolute की जगह you can write simply temperature of the gas. Okay. So amount of gas, number of moles हमने constant कर दिया, मतलब amount of gas is constant, pressure is also taken constant, then the volume and temperature has a direct relationship. ठीक है, for a fixed mass of gas, constant temperature, volume is directly proportional to the temperature of the gas. V is directly proportional to T when N and P are kept constant. Now see from here, we will put a constant of proportionality. तो ये हो जाएगा V equals to KT. और we can also write V by T का जो रेशो है that is constant. ठीक है, तो V equals to KT और V by T ratio is constant. So again we can compare the initial and final conditions. When volume is V1, temperature is T1. And if you change the temperature to T2, so volume changes to V2. पर ये रेशो तो कांस्टेंट रहेगा. V by T का रेशो is constant. So V1 upon T1 is also constant and V2 upon T2 is also constant provided N and P are kept constant. So we can compare the initial and the final conditions with this formula. V1 upon T1 is equal to V2 by T2. अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं. Suppose we have this gas enclosed in a cylinder and this is a massless piston, right? हमने क्या किया, इसका इनिशियल वॉल्यूम सपोज V1 है और टेम्परेचर जिसपे गैस अभी प्रेजेंट है सपोज दैट इज T1, राइट? अब हमने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया. जब हीट करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है, सो जब हमने इसको हीट करना शुरू किया तो मॉलिक्यूल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग एनर्जी. अब जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, देयर काइनेटिक एनर्जीज विल इंक्रीज.
और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो जिस प्रेशर से वो स्ट्राइक करेंगे वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इफ देयर एनर्जी इंक्रीजेस देन द स्ट्राइकिंग रेट विल इंक्रीज, द प्रेशर ऑफ द गैस विल इंक्रीज, right? There will be more collisions, more pressure, but P is kept constant. So how to keep P constant? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे और उनका जो कोलिजन का रेट है, नंबर ऑफ कोलिजन है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज एनर्जी बढ़ गया। सो एनर्जी बढ़ने से उनका नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बढ़ जाएगा। लेकिन हमें तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने का तरीका क्या है? इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। So if you increase the volume, what will happen? P will remain constant. तो volume has been increased to V2. तो क्या हो जाएगा? Molecules ज्यादा दूर दूर जाएंगे तो pressure वापस constant हो जाएगा, ठीक है। So जब temperature increase किया from T1 to T2, so volume also changes from V1 to V2, so that the pressure remains constant. Getting it? समझ आ रही है? क्योंकि अगर हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो क्या तरीका है? वॉल्यूम को इंक्रीज करो। वॉल्यूम को इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा डिस्टेंस है तो उससे क्या हो जाएगा? प्रेशर वापस कांस्टेंट आ जाएगा, बिकॉज अब मॉलिक्यूल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वॉल पे स्ट्राइक करने के लिए। सो प्रेशर अगेन बिकम्स कांस्टेंट। सो व्हेनेवर वी इंक्रीज टेम्परेचर, इन ऑर्डर टू कीप प्रेशर कांस्टेंट वी हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है गैस का तो वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम भी बढ़ता है अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, राइट। नाउ जस्ट सी दिस रिलेशन V इक्वल्स टू KT। अब ये जो टेम्परेचर हम यहां पर ले रहे हैं, कौन सा टेम्परेचर है? केल्विन स्केल पर, ठीक है। दिस इज द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। Now what is the relation between Kelvin temperature and Celsius? Temperature on Kelvin scale is equal to temperature in Celsius scale plus 273.15. ये 0.15 आप निग्लेक्ट भी कर सकते हो, can simply take it as 273. So temperature on Kelvin scale is Celsius plus 273, right? अब मैं इस Kelvin को यहाँ पुट कर रही हूँ तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द गैस और टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, ठीक है। यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन 2 को मैं 1 में पुट कर रही हूँ। सो V इज इक्वल टू K, टेम्परेचर केल्विन की जगह हम पुट कर रहे हैं टेम्परेचर सेल्सियस स्केल प्लस 273.15, और यू कैन जस्ट इग्नोर दिस, राइट, ठीक है। इसको एक्सपैंड करें तो V इक्वल्स टू KT, remember this T is on the Celsius scale, plus K 273 या 273 K. So I'm ignoring this 0.15. I'm just writing 273 K. You can take 0.15 also. That doesn't matter, right? अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या देखो, अगर टेम्परेचर केल्विन स्केल पे 0 है, if this is 0, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज ऑल्सो 0, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। T 0 ले लिया तो V भी क्या हो जाएगा? 0। तो केल्विन टेम्परेचर अगर 0 है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी टेकन एज 0, बट अगर सेल्सियस टेम्परेचर 0 है, सी दिस, इफ दिस T is 0 ऑन सेल्सियस स्केल, V is not 0 बिकॉज ये टर्म 0 हो रहा है बट दिस टर्म इज स्टिल देयर, सो V has some constant value, ठीक है। When temperature is 0, the volume of the gas is not 0. See, अभी नॉर्मली आप ऑब्जर्व करो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है एंड देयर आर गैसेस प्रेजेंट। सो 0 डिग्री सेल्सियस पे गैसेस का वॉल्यूम 0 नहीं हो जाता, गैसेस आर प्रेजेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस, बट केल्विन जब 0 होता है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल जब 0 होता है, देन वी अज्यूम दैट द गैस डू नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज केल्विन टेम्परेचर 0 का मतलब क्या हुआ? आप देखो केल्विन पे अगर 0 हम ले रहे हैं तो सेल्सियस किसके इक्वल हुआ? -273। 0 Kelvin corresponds to, if I am taking temperature on Kelvin scale as 0 Kelvin, so temperature on Celsius कितना आ जाएगा? Take this to the other side, -273, ठीक है। So 0 Kelvin का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। 0 Kelvin means -273 डिग्री सेल्सियस। इतना लो टेम्परेचर -273,
दिस इज ओनली थ्योरेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली हम -273 पे नहीं जा सकते. सो अगर इतना लो टेम्परेचर है, नेचुरली गैस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. सो वी कैन अज्यूम द वॉल्यूम ऑफ द गैस टू बी 0 एट 0 केल्विन, बट नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस. सो जब सेल्सियस टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल नॉट बी 0, बट जब 0 केल्विन टेम्परेचर है, देन because it is a very low, theoretically like lowest possible temperature, so volume of the gas can be assumed to be 0. और हम ये फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, V equals to KT. ठीक है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल. सेल्सियस स्केल पे ये रिलेशन आएगा. राइट, समझ आ रहा है पॉइंट. अब इसको अगर हम प्लॉट करें, सो यू हैव टू सी हम टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लॉट कर रहे हैं कि केल्विन स्केल. इफ यू आर प्लॉटिंग V वर्सेस T, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, तो जब टेम्परेचर 0 है, ठीक है, 0 केल्विन है, तो वॉल्यूम विल बी 0. 0 केल्विन पे वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी 0, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लीनियर ग्राफ. ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व. सो वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी टेकन एज 0 ऑन केल्विन स्केल. जब टेम्परेचर 0 है, 0 केल्विन है, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी अज्यूम्ड टू बी 0, बट नॉट ऑन द सेल्सियस स्केल. सो व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, लेकिन सेल्सियस में ले रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या होगा, हमने ये रिलेशन किया अभी, V इक्वल्स टू KT प्लस 273K. तो जब T 0 है तो वॉल्यूम 0 नहीं है, वॉल्यूम का कुछ ना कुछ वैल्यू है. ठीक है, सो इसीलिए इट विल बी स्ट्रेट लाइन कर्व बट नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. मीनिंग जब 0 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल पर, तो वॉल्यूम 0 नहीं है. ठीक है, यहां पर कुछ वॉल्यूम होगा, वी कैन अज्यूम दैट वॉल्यूम एज V0. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज नॉट 0. और जब हम इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है, यहां पर नेगेटिव साइड, दिस टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्ड्स टू -273 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो पॉइंट है, जब हम वॉल्यूम का कर्व थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम 0 हो रहा है. तो जिस पॉइंट पे वॉल्यूम 0 हो रहा है, दैट इज टेकन एज 0 केल्विन एंड दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू -273 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे लिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम 0 नहीं है, वॉल्यूम का कुछ वैल्यू है, वो हमने V0 ले लिया. ठीक है, और जब इस ग्राफ को एक्सटेंड करते हैं, तो जिस पॉइंट पे वॉल्यूम 0 हो रहा है सेल्सियस स्केल पे, दैट टेम्परेचर इज -273 डिग्री सेल्सियस. ये जो -273 डिग्री सेल्सियस है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0 केल्विन. तो केल्विन ने अपना स्केल यहां से शुरू किया. केल्विन स्केल शुरू होता है, वो कहां से शुरू होता है, इस पॉइंट से. -273 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 केल्विन. तो 0 केल्विन पे वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी अज्यूम टू बी 0. इतना लो टेम्परेचर पे वी कैन अज्यूम कि गैस मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, उनका वॉल्यूम 0 लिया जा सकता है. इट इज अ theoretically lowest possible temperature. Okay. So I hope it is clear. Okay. Then likewise V versus T कर्व्स आपको दिए होंगे और एक से ज्यादा कर्व दिया होता है कई बार. ठीक है, जैसे ये कर्व दे दिया, टेम्परेचर T1, temperature T2, something like this, T2, T3, and they'll ask you the relation between, sorry, not T1, T2, but P1, P2 pressures. ठीक है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर कर्व है और कांस्टेंट प्रेशर पे है, बिकॉज चार्ल्स लॉ क्या है, V वर्सेस T रिलेशन, व्हाट इज कांस्टेंट, द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, एंड व्हेनेवर द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, जो ग्राफ्स होते हैं, दे आर टर्म्ड एज, व्हाट डू यू कॉल देम, आइसोथर्म्स आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. What do we call constant pressure conditions पे जो curves होते हैं, they are called as
आइसोबार्स, ठीक है। सो दीज कर्व्स आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। अब यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे V वर्सेस T कर्व बनाया, फिर दूसरे पर्टिकुलर प्रेशर पे V वर्सेस T कर्व दिया है, ठीक है। तो दो कर्व्स दिए हैं एंड दे आस्क यू द रिलेशन बिटवीन प्रेशर्स P1 P2 का क्या रिलेशन है। सो अगेन जैसे हमने टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड किया था, इन द सेम वे वी विल फाइंड अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर्स। सो हाउ विल यू फाइंड, टेल मी, what will be the relation between pressures, which is greater, P1 or P2? Hurry up, let me know. So you've already done volume versus pressure relation, ठीक है। अगर हम ऐसे एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें तो इन दोनों पॉइंट्स पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, राइट। सो हम बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वॉल्यूम कैसा है, ज्यादा है, ठीक है। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू हायर वॉल्यूम, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू लोअर वॉल्यूम, V dash V. Now this corresponds to low volume and this corresponds to high volume. So when volume is high, pressure कैसा होता है, constant temperature conditions पे। Apply Boyle's law. So for this particular at this point the temperature is constant, so we can apply volume and pressure relation. Volume high है तो corresponding pressure कैसा होगा, low. Volume low है तो corresponding pressure कैसा होगा, high, because volume is inversely proportional to pressure according to Boyle's law, ठीक है। So which one is higher? This P2, ये pressure P2 पे है कर्व, तो वॉल्यूम यहाँ पर कम है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो प्रेशर कैसा होगा, हाई, ठीक है। सो दैट मीन्स P2 is greater than P1. और यू कैन अप्लाई द नेक्स्ट लॉ, भी हम पढ़ेंगे। वॉल्यूम, जब दूसरा तरीका क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट ले लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशन, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू हायर टेम्परेचर T2, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू लोअर टेम्परेचर T1। तो हायर टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है वो भी हायर होता है, ठीक है। दिस रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। सो दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर corresponds to this pressure, so higher temperature corresponds to higher pressure, so P2 is greater than P1. So आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, किसी एक टर्म को, किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट लिया और बाकी दो को कंपेयर किया। So this was Charles law, ठीक है। इसका एक और स्टेटमेंट है, I'll just tell you that also. According to Charles law, keeping N and P constant, ठीक है, for a fixed amount of gas, same relation, for a fixed